ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا آپ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس ہی سے نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے تو قبر کا منظر سب سے آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی پابند عہد، عوام کی ترقی ہی کانگریس حکومت کا مقصد، وزیر اتم کمار ریڈی نے بالکنڈہ حلقے کا کیا دورہ۔ حکومت تمام ہاسٹلز رہائشی اسکول کے طلبہ کو غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنے کے لیے مشترکہ خوراک کے منصوبے کا کیا آغاز، طلبہ بہتر تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو۔ ناگرام مسجد کریم میں اشرار کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی پر ایم و کانگریس قائدین کا احتجاج، اشرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے حلقہ اسمبلی بالکنڈہ کا ضلع کلکٹر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی و دیگر قائدین کے ہمراہ کیا دورہ۔ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی پابند عہد، عوام کی ترقی ہی حکومت کا نصب العین ہے، وزیر نے کیا خطاب۔ ریاستی وزیر آبپاشی و سول سپلائی اتم کمار ریڈی نے حلقہ اسمبلی بالکنڈہ کا دورہ کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی پابند عہد ہے اور عوام کی ترقی ہی حکومت کا نصب العین ہے۔ اگلے 5 سالوں میں ریاست میں آیا کٹ کی 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ کانگریس حکومت آگے بڑھ رہی۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے نظام آباد ضلع بالکنڈہ حلقے کے منڈورا منڈل میں SRSP پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام میں بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی، نظام آباد رورل ایم ایل اے بھوپت ریڈی، بالکنڈہ ایم ایل اے ویمولہ پرشانت ریڈی، آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی، لکشمی کانت راؤ، محکمہ آبپاشی کے پرنسپل سیکرٹری راہل، نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو اور دیگر نے جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے شری رام ساگر ریزروائر کی صورتحال کو علم میں لایا۔ انہوں نے کہا کہ SRSP کے ذریعے پچھلے 5 سالوں سے ہم مانسون اور یاسنگی کے موسموں میں آیا کٹ کے 10 اضلاع میں ہر سال اوسطاً 12.5 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی کا پانی فراہم کرنے میں کامیاب رہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کاکتیہ، سرسوتی اور لکشمی نہروں کے ذریعے چھوڑے جانے والے کھیتی اور پینے کے پانی کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا
और अहदेदारों को अहम तजावीज़ दी। उन्होंने श्री राम सागर की बहाली की स्कीम के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने SRSP के जरिए आखिरी आयाकट को सैराब करने के लिए किए जाने वाले काम पर तबादला ख्याल किया और अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतम्बा किया कि आपाशी प्रोजेक्ट और लिफ्टिंग स्कीमों के इंतजाम को मौसर अंदाज में चलाया जाए और अगर कोई गफलत का मुजाहरा करेगा तो वो उन्हें मुअत्तल करने से दरियक नहीं करेंगे। निजामाबाद MLA भूपत रेड्डी और बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की दरख्वास्त पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 21वें पैकेज के नामुकम्मल कामों को जंगी खतूत पर शुरू करें। उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए जरूरी फंड्स मख्तस किए जाएंगे। जायजा हासिल करने के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद मुश्तरिका जिले में श्री राम सागर और निजाम सागर के तारीखी प्रोजेक्टों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि SRSP प्रोजेक्ट की गुंजाइश जिसमें 112 TMC पानी जखीरा करने की गुंजाइश है अब कम होकर 80 TMC रह गई। उन्होंने कहा कि इसको ज़हन में रखते हुए आलमी मियार की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम SRSP कामों को शुरू करेंगे और पानी को बरकरार रखने की सलाहियत में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि आपाशी के शोबे को दोबारा मजबूत बनाने की बुनियादी तौर पर सफाई के इक़दाम किए जाए जिसे गुज़िश्ता 10 सालों में सख्त नजरअंदाज किया गया। इसके तहत महकमा आपाशी ने 700 नए AE और 1800 लश्कर का तकर्रुर किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा 5 सालों के लिए खरीफ और यासंगी सीजन के दौरान हर साल 500 बोनस अदा किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में किसी शक व शुबे की जरूरत नहीं। वाज़ेह किया कि बोनस का इतलाक इमदादी कीमत के अलावा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने समाजी इंसाफ के उसूल पर मबनी अवामी हुक्मरानी का बेड़ा उठाया, रियासत के किसानों, खवातीन, नौजवानों और तलबा जैसी तमाम तबकात की तरक्की के लिए बहुत से प्रोग्राम को नाफिज कर रहे। उन्होंने वजाहत की कि इख्तिदार संभालने के 10 माह के अंदर 55,000 मुलाजमतों की तकर्रुरी की गई। नौजवान में हुनरमंदी को बढ़ाने के लिए हैदराबाद में एक बैनुल अक़वामी सतह की स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया और ITIs में जदीद कोर्सेज मुतारिफ और अपग्रेड किए गए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अनविश रेड्डी, IDCMS के चेयरमैन ताराचंद, बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार रेड्डी, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी, आपाशी व सिविल सप्लाई के अहदेदारों ने जायजे में हिस्सा लिया। दरअसल वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जो हेलीकॉप्टर के जरिए SRSP प्रोजेक्ट पर पहुंचे, अरकानी असेंबली, कलेक्टर्स, दीगर आला अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए वजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। నేను ఈరోజు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకి రావడానికి ప్రధాన కారణం నిజాం సాగర్లో రబీ పంటకి నీటి విడుదల చేయడానికి వచ్చాను. అదొక హిస్టారికల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుగా నేను ఎప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టు కట్టిన తీరు, ఆ ప్రాజెక్టు 100 ఏళ్ల కింద కట్టడం, అప్పటి నుంచి నిరంతరంగా మరి చెక్కు చెదరకుండా ఏ విధంగా అయితే ప్రాజెక్టు కొనసాగుతుందో నేను దాన్ని అడ్మైర్ చేస్తూ ఈరోజు అక్కడికి రావడం జరిగింది. అక్కడ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో కూడా మొత్తం ఒకసారి రివ్యూ చేసినాము. మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి, ముందుకు ఏ విధంగా పోవాలనే విషయంలో. సరే, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరో ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు మరి SRSP కూడా విజిట్ చేసి ఒక అందరూ చీఫ్ ఇంజనీర్స్, ENCs, కన్సర్న్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్, ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఆహ్వానం పంపించి ఒక రివ్యూ లాగా చేసుకున్నాం. నేను ఈరోజు BRS, BJP శాసనసభ ఇష్టం ఉంటే పైకి లేకపోతే కిందికి, ఇష్టం ఉంటే మంచి పోస్టు లేకపోతే సైడ్ లైన్ పోస్టు, ఆ విధంగా మొత్తం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. మేము వచ్చి దాన్ని పూర్తిగా కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి, స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం. ఉదాహరణకి మేము 700 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లని కేవలం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోనే రిక్రూట్ చేసినాం. నేను మీకు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో జలసౌదాలో 700 మంది యంగ్ ఇంజనీర్లని IIT, NIT గ్రాడ్యుయేట్స్, అందులో సగం మంది IIT and NIT గ్రాడ్యుయేట్స్ మన ఇరిగేషన్. हुकूमत ने तमाम फलाही हॉस्टलों और रिहायशी स्कूलों में
तलबा को ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम करने के लिए मुश्तरका खुराक का मंसूबे का आगाज़ किया है। तलबा हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए आला अहदाफ की तरफ बढ़े। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल के कोटैया कैंप में वाक़ई ट्राइबल आश्रम स्कूल में कॉमन डाइट प्लान का बाकायदा आगाज किया, जहां हुकूमत ने पुरजोश तरीके से रियासत के तमाम फलाई हॉस्टलों में इसी तरह का डाइट प्लान मुतारिफ कराया है। वहीं असला के मुख्तलिफ हॉस्टलों में ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने हफ्ते को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, स्कूल के स्टोर रूम का दौरा किया और सब्जियों, अशिया, खुर्दनोश का मुआयना किया। तालिब इल्मों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त फ्राहम की जाने वाली यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक का मुआयना किया। उन्होंने लाइब्रेरी में दस्तयाब किताबों, हेल्थ केयर रूम में मौजूदा सहूलियात और अद्वियात को चेक किया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। तलबा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर लंच किया, स्कूल के अहाते में पौधे लगाए। स्कूल में इजाफी सहूलियात की जरूरत को तस्लीम करते हुए कलेक्टर ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात करें। इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कलेक्टर ने उन्हें बेहतर तालीम हासिल करने और मुस्तक़बिल में आला ओहदों पर पहुंचने की तलकीन की। वो हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात से फायदा उठाकर आला अहदाफ की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम फलाही हॉस्टलों और रिहायशी स्कूलों में तलबा को मियारी ग़िज़ायत से भरपूर खुराक फ्राहम करने के लिए मुश्तरका खुराक का मंसूबा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हॉस्टलों और स्कूलों के तलबा की फलाह व बहबूद के लिए डाइट चार्जेस में 40% और कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक फ्राहम करना और बेहतर तालीम हासिल करना हुकूमत का नस्बुल ऐन है। इस मौके पर कलेक्टर की हमरा दिगर कायदीन मौजूद थे। మిమ్మల్ని ఇక్కడ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది। సో చాలా మంది కూడా మనకి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆశ్రమ్ స్కూల్స్లో కూడా ఈవెన్ మనకి ఐటీడీ ఉట్నూరు అవ్వచ్చు, ఐటీడీ భద్రాచలము, ఏటూరు నాగారము, సో అన్నిట్లో కూడా ఆశ్రమ్ స్కూల్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంచి స్థాయికి వెళ్ళడం జరిగింది। సో మీరు కూడా బాగా చదువుకోండి। సో ఏమైనా మీకు డౌట్స్ వచ్చినా కూడా, అంటే క్లాస్లో డౌట్స్ వచ్చినా కూడా మీరు మొహమాటంతో నేను డౌట్ అడిగితే పక్కన ఉన్నవాడు నా ఫ్రెండ్ ఏమైనా నాకు అర్థం కాలేదు అనుకుంటాడు, లేదు అంటే నాకు రాదు అనుకుంటారు అనేది కాకుండా, సో చదువుకున్నప్పుడు కానీ మీకు లెసన్స్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా మీరు టీచర్ని అడగాలి। అడిగితే మీకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి, సో దట్ మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది। అదర్వైజ్ మీరు డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగకపోతే మీ డౌట్స్ సందేహాలు అలానే ఉండిపోతే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది। बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल बोरलम अखिलियती गुरुकुल स्कूल में नए कॉमन डाइट मेनू का किया इफ्तिताह और तलबा को हिदायत दी कि वो बेहतर तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज हो। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में बोरलम अखिलियती गुरुकुल स्कूलों में नए कॉमन डाइट मेनू का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में महकमा ज़राअत के मुशीर एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और डाइट चार्ट की नकाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए पोचराम ने कहा कि जितनी तालीम जरूरी है उतना ही खाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने तलबा को बेहतर खाना फ्राहम करने के लिए खुराक और कॉस्मेटिक्स चार्जेस में इजाफा किया है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो आला तालीम हासिल करें। इस मौके पर दीगर कायदीन मौजूद थे। उनका हेल्थ कुछ देखना है, पढ़ने को देखना है। आज आप लोग हेल्थ के वास्ते, सेहत के वास्ते अच्छा खाना खिलाए तो आप लोग अच्छे पढ़ते बोल के समझ के रेवंत रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर के डाइट के तहत बना दी। इनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। उस तरीके से चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर हो, एमपी हो, सरपंच हो, जो भी हो, हम भी ये बच्चों को एक इसी बांसवाड़ा निजामाबाद शहर के नागराम इलाके में मस्जिद करीम में अशरार की जानिब से बेहुरमती, बैरिस्टर ओवैसी का इंचार्ज पुलिस कमिश्नर को फ़ोन, अशरार के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर, मुकामी मजलिसी कायदीन का शदीद एहतजाज, पुलिस से अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
निजामाबाद शहर के 5th टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई नागरम 80 क्वार्टर इलाके में मस्जिद करीम में नामालूम शरपसंद अनासिर ने दाखिल होकर कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती की और मस्जिद के माइक एम्पलीफायर को तोड़ दिया। वाक़ई के इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने आज सुबह वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाल, रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस को इत्तला दी। बैरिस्टर ओवैसी ने इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सिंधु शर्मा को फोन पर बात की और इस वाक़ये में मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद अरशद पाशा, असीम बाबा, मीर मुमताज अली अज्जू एडवोकेट ने मस्जिद का मुआयना किया और एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी, 5th टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर 5th टाउन गंगाधर से मुलाकात करते हुए 5th टाउन पुलिस स्टेशन में शरपसंद अनासिर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इशरार की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश के जरिए मस्जिद को निशाना बनाया है ताकि फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचे। इन कायदीन ने कहा कि मस्जिद की बेहुरमती के बाद मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। मस्जिद करीम इंतजामी कमेटी के सदर मोहम्मद अब्दुल इसरार, मस्जिद के इमाम हाफिज खान, मुकामी नौजवानों ने वाक़ये पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि शरपसंद अनासिर की जानिब से क़ब्ल अज़ीम मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और आज सुबह नमाज फज्र की अजान के लिए पहुंचने पर मस्जिद में शरपसंदों ने तोड़ फोड़ की और कुरानी नुस्खों की बेहुरमती की। वाक़ये के बाद पुलिस ने मस्जिद के सामने पैकेट कायम करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। नागरम में मस्जिद करीम की मस्जिद है, इसमें थोड़ा अननोन पर्सन एंटर होके थोड़ा डिस्टर्ब करे पूरा सामान। पिटीशन आया, पुलिस वाले की पिटीशन आया, पुलिस वाले केस बुक कर रहे। कोई रात में अननोन पर्सन ये डिस्टर्ब करना बोल के, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करना बोल के कोई ऐसा ट्राई करे, उन लोगों को पकड़ते, पक्का एक्शन लेते उनके ऊपर। सब लोग कोऑपरेट करना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आज सुबह अवलिन सातों में नागाराम मस्जिद करीम 80 क्वार्टर में जो मस्जिद है, मस्जिद में चंद शरपसंद अनासिर ने मस्जिद की बेहुरमती की और जैसा ही इत्तला मिली निज़ामाबाद के तमामी शहरी उलमा-ए-दीन ने यहाँ पर आया और यहाँ पर 5 टाउन पर एसीपी साहब भी आए, सर्कल साहब भी आए। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ, ये वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ इसकी इत्तला हम हमारे दारुस्सलाम हाई कमान असद साहब को भी दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस से कि खुसूसन नागाराम एरिया में, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये ऐसे हरकत देखने में आ रहे हैं, तो पुलिस का ये काम है ज़रूरी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें और खुसूसन ये बीपीएल आवाम यहाँ पर रहती है, उसमें शरपसंद अनासिर भी रहते हैं, तो इनके लिए कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है यहाँ के एरिया में पुलिस अपने तरफ से कैमरे नस्ब करे और पेट्रोलिंग ज़्यादा करे। हम बाहर ये एरिया को लेकर पुलिस में हम ये हमारी गुजारिश दी कि ये एरिया में सब कंट्रोल्स भी हो और पुलिस की पेट्रोलिंग भी हो। तो और साथ ही साथ कैमरों के ताल्लुक से भी सारे शहर के लिए बोले, लेकिन स्पेशली ये एरिया में जैसा कि पिछले दिनों में हमको चीज़ें सामने आई कि यहाँ पर ऐसे हरकत बहुत मनसूबन तरीके से किए जा रहे हैं। इसको रोका जाए, वरना हालात फिर बिगड़ेंगे। फिर आवाम ज़ाहिरी बात है, मस्जिद और कुरान करीम की बात आई तो मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और पुलिस को हम बारहा ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें और जो इसके पीछे जो लोग हैं इन तमाम को जल्द से जल्द अरेस्ट करें। और आवाम से भी हम अपील करते हैं कि पुलिस हमें पैगाम दिया है कि यहाँ पर हम जो भी हरकत हुई
उसके पीछे कौन है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे बोलकर हम उम्मीद करते हैं। और इंशाअल्लाह पुलिस भी अपना काम करेगी। जैसा ये इस सिलसिले में सदर मोहतरम जनाब असद साहब ने हम जैसा इत्तला दी उसके बाद भी फ़ोन किए तो हमें असद साहब ने कहा कि CP को वो बात कर चुके हैं और वो CP इसमें इन्वॉल्व होते हुए पुलिस को तमाम हरकत में लाते हुए काम करेगा बोल के असद साहब को तयफुन दिया। और आप तमाम भी ध्यान से रहें, इंशाअल्लाह पुलिस अपना काम करेगी, वरना आप हम मिलकर फिर से एक बार ACP साहब के पास जाएंगे। मस्जिद करीम नागराम में अशरार दाखिल होकर मस्जिद और कुरान करीम की बेहुरमती पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन का एहतजाज, अशरार की फौरन गिरफ्तारी, सख्त सज़ा और गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दामात पर जोर। मस्जिद करीम में कल रात जो बदबख्ताना वाक़या हुआ, हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और आज हमने साबिक़ा डिप्टी मेयर में फ़हीम, हारून खान, सैयद नजीब अली, हम लोग सब मिलकर अभी ACP साहब से इस वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए जो इस वाक़े में मुलविस बदबख्त लोग हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हमने मुतालबा किया, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी करने का हमने मुतालबा किया। हम यह बता रहे हैं कि इस इलाके में मुजरिमाना सरगर्मियाँ जो जारी है, पुलिस को उसके ऊपर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है और उनमें आहनी पंजे से कुचलने की शदीद ज़रूरत है। हमने इस इलाके में वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 में एक अलायदा टाउन का मुतालबा किया, जिसमें ACP साहब ने और फिगर करने का जो हमसे वादा किया। हम चाहते हैं कि शहर की पुरअमन फिजा को जो बिगाड़ रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करे ताकि शहर में अमन का माहौल बरकरार रह सके। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शीशाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शीशाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981168967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। हुकूमत ग्रोकल स्कूल्स में तलबा के लिए सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और ऊंची चोटियों को सर करें। रियासती महकमा जंगलात के डिप्टी डायरेक्टर रमेश व बोधन सब कलेक्टर विकास महातव का बयान। रियासती महकमा जंगलात के डिप्टी डायरेक्टर रमेश और बोधन सब कलेक्टर विकास महातव ने एडपली गर्ल्स ग्रोकल स्कूल में खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे पर हुकूमत की जानिब से मुनक्किद की गई मीटिंग में शिरकत की। बादशाह लड़कियों की जानिब से सखाफती परफॉर्मेंस मुतासिर कुन थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मौजूदा हुकूमत ने खुराक के चार्जेस में मौजूदा कीमतों के मुताबिक इजाफा किया है, जो कि पिछले कुछ सालों से नहीं पड़े हैं। उन्होंने तलबा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मौक़े से फायदा उठाने का मशवरा दिया। देही इलाकों की तलबा अपनी पढ़ाई में पीछे है, उन्हें अपनी पढ़ाई में सबकत लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि तदरीस के लिए एक मरबूत स्कूल की मंजूरी दी गई और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और उन्हें मसाबिकती जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस मौके पर गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल गंगा शंकर दीगर भी मौजूद थे। गांधी जी చెప్పినది ఏమి అంటే it is easy to stand in the crowd to blame anybody but it takes courage to stand alone. Next ఒకటి వచ్చేసి your future depends upon the what presently what you are doing, that will represent your future of life also. Okay, thank you very much for giving me an opportunity to talk with you. Wish you all the best for your bright future. Thank you.
अगर ट्रेन के सफ़र के दौरान मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए तो मुतासरीन परेशान ना हो और जीआरपी रेलवे स्टेशन से राब्ता करें। पुलिस खुसूसी ऐप के जरिए आपका फ़ोन आपके हवाले करेंगी। निजामाबाद रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में सफर के दौरान अपने सेल फोन खोने वाले मुसाफिरों के सेल फोन्स का खुसूसी ऐप के जरिए सुराग लगाकर उन्हें बरामद किया। उन्हें हफ्ते को निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर मुतासरीन के हवाले किया। इस मौके पर रेलवे एसआई साई रेड्डी की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक 10 अफराद जिन्होंने अपने टिकटों के साथ ट्रेनों में फोन खोए थे उनका सुराग लगाया गया और CEIR के जरिए उन्हें वापस किया गया। अगर ट्रेनों में किसी का फोन गुम हो जाए तो वो GRP रेलवे स्टेशन से राब्ता करें। ఈ రోజు మాకు అంటే ఈ నెలల మొత్తం మీద ఒక 10 ఫోన్లు మాకు దొరికినాయి. అంటే పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ట్రైన్లలో కానీ ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ అక్కడక్కడ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు మనకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా CIR అనే ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్ ద్వారా మేము ఆన్లైన్లో దాన్ని అప్లోడ్ చేసినాము. అప్లోడ్ చేసి దాన్ని బ్లాక్ చేసినాము. ఫోన్ బ్లాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రేసబుల్ని తెప్పించుకొని ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో సిమ్ వేయడం వల్ల మాకు మెసేజ్ వస్తుంది. దాని ద్వారా ఆ పోర్టబుల్ ద్వారా మాకు ఆ మెసేజ్ రాగానే మేము ఇమీడియట్లీ ఆ ఫోన్ ఎక్కడుందో అక్కడ నుంచి వారి దగ్గర నుంచి స్వాధీనపరచుకొని మరి ఈరోజు 10 మందికి ఈ ఫోన్లు అప్పచెప్పడైంది. వాళ్ళ ఓనర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళకి ఈరోజు వాళ్ళ ఫోన్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడైంది. అలాగే మీకు ఎక్కడైనా మీ ఫోన్లు ఎక్కడైనా పోయినచో మరి ఇమీడియట్లీ మా దగ్గర నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉంటాం. మేము రైల్వే పోలీసు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు దరఖాస్తు ఇచ్చినట్లయితే మేము మళ్ళీ మీ ఫోన్లు కూడా మీకు అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. 5 रोज कबल रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव में हुक्काम ने तकरीबन 22 टिपर्स रेत के किए जब्त। जखीरा की गई रेत की नीलामी करने का अवाम ने हुक्काम से किया मुतालबा। 5 रोज कबल रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव के गुट्टे इलाके में हुक्काम ने तकरीबन 22 टिपर्स मालियत के रेत को कब्जे में लिया था और अभी तक उनकी कोई नीलामी नहीं हुई। मुकामी अवाम बहस कर रहे कि पता नहीं असल नीलामी होगी या नहीं की सूरत हाल है। उनका मौक़िफ़ है कि जब्त किए गए रेत के डंपों को नीलाम करके हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा। जखीरा की गई रेत को नीलाम करने का अवाम ने मुतालबा किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों की पाबंदी अहद। अवाम की तरक्की ही कांग्रेस हुकूमत का मकसद। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बालकुंडा हल्के का किया दौरा। हुकूमत तमाम हॉस्टल्स रिहायशी स्कूल के तलबा को ग़िज़ाई से भरपूर खाना फराहम करने के लिए मुश्तरका खुराक के मंसूबे का किया आगाज। तलबा बेहतर तालीम हासिल करें और आला उर्दू पर फायज हो। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतू। नागराम मस्जिद करीम में अशरार की जानिब से कुरान करीम की बेहुरमती पर इमाम व कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।